السلام علیکم۔ تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے 420 JGS کے بارے میں ہے، کیونکہ ہماری جو سیریز چل رہی ہے وہ ہے ایم پینل کی PLC کے موڈیول کے بارے میں ہے اور اس کے ان پٹ اور آؤٹ پٹ کے بارے میں ہے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے انجن کے پاس۔ تو انجن کے پاس جو ہے میں آپ کو اس کے موڈیولز وغیرہ دکھانے کی کوشش کروں گا اور اس کے ٹیکس کے بارے میں بھی بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا 420 انجن JGS کا جو ہے ایم پینل ہے۔ ابھی میں اس کو اوپن کرواتا ہوں، اوپن کروا کے جو ہے میں آپ کو اس میں PLC دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو یہ ہے ہمارے ایم پینل کی PLC، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو ہے ہمیں جو آج کام کرنا ہے وہ ہے ہمیں PLC جو ہے 7 نمبر PLC پہ کام کرنا ہے۔ جو فرسٹ PLC دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا بس کنٹرولر ہے اور سیکنڈ جو ہے یہ ہمارے سپلائی موڈیول ہے، اور جو تھرڈ جو ہے یہ ہمارا کین بس ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ ہمارے 4 اینالوگ موڈیول آ جاتے ہیں، اور جو 5ویں نمبر پہ جو ہے یہ ہمارا اینالوگ آؤٹ پٹ ہے۔ اگر PLC نمبرنگ کے حساب سے بات کریں تو یہ موڈیول جو ہے یہ ہمارے 7ویں نمبر پر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب فرسٹ والا جو ہے یہ 0 ہو گیا، اس کے بعد جو ہے 1 2 3 4 5 6 7۔ اب اگر اس کی ٹیگ کی بات کریں تو ٹیگ جو ہے اس کا ہے 29K1، تو جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے اس کا 29K1 کا ٹیگ ہے۔ اب اس موڈیول کے اندر ہمارے کیا کیا چیزیں استعمال ہو رہی ہیں، کون کون سی ڈیوائسیں ہماری اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، تو اس کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے انجن کے پاس۔ تو ہو سکتا ہے کہ میں موڈیول کے آج ایک ہی کنیکشن کے بارے میں بات کروں، کیونکہ اس کے ساتھ کافی ڈیوائسیں کنیکٹڈ ہیں۔ تو فرسٹ ڈیوائس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہمارا تھروٹل اور ایکچویٹر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے جو کنیکشن ہے، جو ان پٹ آؤٹ پٹ جو ہو رہے ہیں، یا اس کی جو بھی پرسنٹیج وغیرہ کے کتنے پرسنٹیج اوپن ہے یا کلوز ہے، تو وہ ہمارے جو ہے ایم پینل کے 29۔ اچھا، تو یہ ہمارے ایم پینل کے 29K1 کے موڈیول میں شو کروائے گا۔ تو آگے میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس موڈیول سے ہمارے اور کون کون سی چیزیں کنیکٹڈ ہیں۔ تو یہاں پہ اگر ہم آئیں گے انجن کے پاس، تو انجن کے پاس جو کور ہے، کور کے نیچے جو ہمارے 2 ٹربو بائی پاس جو لگے ہوئے ہیں، جس کو بائی پاس بھی کہا جاتا ہے، یہ 2 ٹربو بائی پاس ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بھی جو ہے اس کو اوپن کلوز کروانا فیول کے حساب سے بائی پاس کروانا، کتنا پرسنٹیج اوپن ہے اور کتنے پرسنٹیج یہ کلوز ہیں۔ تو خیر، تو اس کے بارے میں بھی جو ہے اس کے بھی جو کنیکشن وائرنگ جو ہوگی وہ بھی ہمارے موڈیول پہ جائیں گی۔ تو ڈائنی کے پاس، تو یہاں پہ ڈائنی پہ بھی میں آپ کو شو کروانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو یہ ہماری ڈائنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ڈائنی پہ چلیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ہمارا ایکچویٹر تھروٹل ہے، جو کہ ابھی ہمارا 100% اوپن ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ برابر میں جو 38.6 پہ جو ہے یہ ہمارا ٹربو بائی پاس ہے، جو کہ 38.6 پہ اسی موڈیول کے تھرو جو ہے ہمیں ڈائنی پر شو کروا رہا ہے۔ ابھی چلتے ہیں ہم اپنی ڈائیگرام کے پاس۔ تو اب آتے ہیں ہم اپنے ڈائیگرام کی طرف۔ تو ڈائیگرام میں جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی ایم پینل میں پورے PLC کے اسٹرکچر کے بارے میں بتایا، تو وہ جو PLC تھی جس کا ہمارا تھوڑا بہت ادھورا رہ گیا تھا، جو کہ ہمارا اینالوگ آؤٹ پٹ کے بارے میں تھا، اور PLC موڈیول جو نمبر تھا وہ موڈیول تھا نمبر 7، اور اس کا جو ٹیگ تھا وہ تھا 29K1، ٹھیک ہے۔ اب 29K1 تھا تو ہم لوگ پیج نمبر چلے جاتے ہیں اس کے 29 پہ۔ تو اس کے موڈیول کے بارے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو یہ آ گیا ہمارا موڈیول 29K1۔ تو اس سے پہلے جو ہماری ایک ویڈیو تھی تو وہ ہماری تھی POSTV، جو کہ تھا ہمارا ایکچویٹر تھا، جس کو تھروٹل بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے ایکچویٹر کے بارے میں تھی، ٹھیک ہے۔ تو آج کا جو ہماری ویڈیو ہے وہ تھے POSCBV۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ٹربو بائی پاس ہوتا ہے۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے ہماری ٹربو بائی پاس پہ ہے، اور اگر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کو بھی جو ہے ہم ایک ہی ویڈیو میں کور کرنے کی کوشش کریں گے، اور اسے بھی ہم کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہماری ویڈیو جو ہے کتنی بڑی بنتی ہے۔ تو خیر چلتے ہیں۔ تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ ہمارا اینالوگ آؤٹ پٹ تھا۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی ایکچویٹر کے بارے میں۔ تو ایکچویٹر کے بارے میں آپ کو سمپل سمجھانے کی کوشش کر دیتا ہوں ڈائیگرام پہ پھر سے۔ تو 38 کے پیج نمبر 1 پہ جانا پڑے گا ہمیں۔ تو یہ آگے ہم 38 کے پیج نمبر 1، ٹھیک ہے۔ اس پہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے POSTV، اور یہ ہے ہمارا پیج نمبر 38، ٹھیک ہے۔ اب اس کی ڈیٹیل پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ اس پہ لکھا ہے 0 to 20 ملی ایمپیئر، ٹھیک ہے۔ 0 to 100%، مطلب اگر 0 ہے تو 0% ہے ہمارا ایکچویٹر،
और अगर 20 मिली एम्पेयर अगर वहाँ से जनरेट होंगे तो ये हमें परसेंटेज 100% पे बताएगा कि हमारा एक्चुएटर जो है 100% ओपन है। तो खैर आगे चलते हैं, तो इसके कनेक्शन पे चलते हैं। तो ये हमें बोल रहा है कि 59.3 पे जाना पड़ेगा, तो चलते हैं 59.3 पे। तो ये आ गया, तो ये आ गई हमारी एक्चुएटर की डिवाइस। तो मैं इसमें इसको बताने की कोशिश करता हूँ। ये है हमारी सप्लाई, ठीक है, ये है हमारा रन एंड DIS, ठीक है। तो ये जो है यहाँ जो है हमारा जंप होता है, ठीक है। अब ये इससे जो है इस सप्लाई से, ये जो आप देख रहे हैं इसकी सप्लाई से जो है हमारा ये एक्चुएटर जो है, ये जो एक्चुएटर है ये इससे एनर्जाइज हो रहा है, ठीक है। अब ये जो है ये मेन चीज़ है जो कि हमारे PLC से जैसे मतलब कि जो कमांड आ रही है, ठीक है। अब वो जो कमांड जो इसको आ रही है, क्योंकि माइनस जो है वो हमारा डायरेक्ट है, ठीक है। अब ये आप ये जो देख रहे हैं ये यहाँ से इसकी आउटपुट हो रही है और PLC से यहाँ से ये इनपुट हो रही है, जिसका जो टैग है DRKLP, ठीक है। अब इसके बारे में मैं आपको जो है नॉर्मल तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। तो क्या होता है कि अगर जैसे कि हमारे इंजन को फ्यूल की ज़रूरत है, या हमारा एक्चुएटर जो है जितने परसेंटेज में मतलब फ्यूल या लोड के हिसाब से खुलने का इरादा रखता है, जो कि इंटरनली जो है सब कुछ हो रहा होता है, तो क्या करता है कि यहाँ से हमें इनपुट से सिग्नल मिलता है कि हमारे एक्चुएटर को जो है कितने परसेंटेज ओपन होना चाहिए। तो एनालॉग आउटपुट से हमें यहाँ सिग्नल मिलता है +M1 से। तो ये जो है ये ओपन होने की कोशिश करता है। सिर्फ यही नहीं, सिर्फ ओपन ही नहीं होता है, बल्कि इसके अलावा जो है ये हमें परसेंटेज भी बता रहा होता है कि हमारा जो है अभी एक्चुएटर कितने परसेंटेज ओपन है। और उसके बाद जो है एक ये वाली वायर रह जाती है, ठीक है। तो ये इस पर लिखा हुआ है ST8ACT, ठीक है। अब ये यहाँ से आउटपुट हो रहा है, तो ये हमारे एक्चुएटर के स्टेटस के बारे में बता रहा है। इसका मतलब कि जो हमारा एक्चुएटर है उसमें कोई फेलियर या कोई एरर या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं आई भी। अगर वो ओके पोजीशन पे, तो ये ओके हमें शो करवाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसी कनेक्शन पे मैं नीचे जाऊँ तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है फेलियर थ्रोटल वेल्व, ठीक है। उसके बाद क्या है MA एक्चुएटर, उसके बाद क्या है लिखा हुआ है सप्लाई एक्चुएटर, उसके बाद ये लिखा हुआ है एक्चुएटर। अच्छा, तो उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये हमें मिलेगा जो आउटपुट हो रहा है स्टेटस, ठीक है, 41 के 2 पे मिलेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने 41 के 2 पे। तो ये आ गया हमारा 42, ये आ गया हमारा 44 और ये आ गया हमारा 42। तो इसने हमें कहा है कि ये आपको जो है 42 के 1 पे मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये हमें मिलेगा 41 के 2 पे। तो ये है हमारा पेज नंबर 41 और 41 के 2 पे चलते हैं। तो ये हमारी डायग्राम का जो है ये आ रहा है हमें, ये नंबर लिखा हुआ है 0, ये 1 और ये 2। अगर इस 2 से हम इसको डाउन करेंगे तो यहाँ पे जो है ये हमारे जो वहाँ से जो आउटपुट हो रहा था और ये हमारे PLC में जा रहा है। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं, इस पर लिखा हुआ है एक्चुएटर ओके, मतलब कि स्टेटस क्या है। अगर उसका ओके है तो ये ओके है, तो ये सेट चलेगा। अगर कोई फॉल्ट वगैरह आ गया तो ये फेलियर या एरर वगैरह शो करेगा। तो खैर अब आगे चलते हैं, तो आगे बता देता हूँ। अब हमारे जो है एक दूसरा ऑप्शन रह गया था, क्योंकि ये वीडियो तो मैं पहले भी इसके बारे में डिटेल पे बना चुका हूँ। तो जस्ट मैं इसकी बेसिक आपको बताने की कोशिश कर रहा था। अब चलते हैं ये वाले पे। अब ये हमारा हो गया क्लियर। अब चलते हैं इस वाले कनेक्शन पे। तो इसकी वायरिंग है 21, 22, 23 है, POSCBV था और पेज नंबर ये हमें 38 पे मिलेगा। तो ये उसी 38 पे हमें लेके जाएगा कि जहाँ से कनेक्शन जो निकल रहे हैं, तो इसके बारे में हमें डिटेल देगा कि इसकी डिटेलिंग क्या है। अब डिटेलिंग की बात करते हैं। तो ये लिखा हुआ है POSCBV, ठीक है। अब इसकी डिटेलिंग की बात कर लें, और डिटेलिंग में क्या है 4 to 20 मिली एम्पेयर है, 0 to 100% है, POSCBV है, 29 के 1 इसका मॉड्यूल का टैग है और पेज नंबर 29 के 1 पे मिलेगा, ठीक है। ये एनालॉग आउटपुट मतलब AO है, तो एनालॉग आउटपुट है। इसका 21 नंबर यूज़ हो रहा है, 22 नंबर स्पेयर है और 23 नंबर यूज़ हो रहा है। और माइनस जो है वो इसको डायरेक्ट मिल रहा है। और यहाँ से जो है हमारी कमांड निकल रही है, जो हमारा PLC जो कमांड देगा। अब ये है क्या चीज़, तो इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ जब नीचे आते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है टर्बो बाईपास, ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है टर्बो बाईपास। तो खैर अब इसकी कमांड के बाद चलते हैं। तो ये लिखा हुआ है 60.1। अब पेज हम चलते हैं 60 पे। तो ये आ गया हमारा पेज नंबर 60। अब ये आ गया हमारे टर्बो बाईपास की डिवाइस और उसकी वायरिंग। ये जो आप देख सकते हैं ये हमारी डिवाइस और ये उसकी सारी वायरिंग है, टोटल वायरिंग।
अब चलते हैं कि इसको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो सप्लाई दे के हमें एनर्जाइज़ करवाना है। जब ये एनर्जाइज़ होगा तभी ये हमारा वर्क करेगा। अच्छा, तभी ये हमारा वर्क करेगा कि हमें इसको कितने परसेंटेज पे ओपन करना है और कितने परसेंटेज पे हमें इसको क्लोज़ करवाना है। तो खैर वो तो सारा ऑटोमेटिकली हो रहा होता है कि जब गेज प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो ये इसको क्लोज़ करवाता है, ठीक है। मतलब कि ओपन करवाता है ताकि वो बाईपास करवा सके। अगर कम हो जाए तो ये उसको बंद करवाता है, मेन लाइन से ले रहा होता है। तो खैर आगे बात कर लेते हैं, आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि माइनस इसको डायरेक्ट मिल रहा होता है। अब इस डिवाइस के इसके बारे में पढ़ लेते हैं, इसकी डिटेलिंग के बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है पावर प्लस, यहाँ पे लिखा हुआ है पावर माइनस, और ये लिखा हुआ है FB पॉजिटिव प्लस है, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव भी हो सकता है, पोजीशन भी हो सकता है। उसके बाद आ रहा है स्टेटस, स्टेटस के बाद आ रहा है SEL, फिर उसके बाद आ रहा है 4220 मिली एम्पेयर। उसके बाद जो है A1 प्लस आ रहा है और उसके बाद जो है A1 माइनस आ रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से इसमें भी सारा लिखा हुआ है। और ये दोनों जो टर्बो बाईपास हैं, ये दोनों जो है हमारे एक ही साथ ही काम करते हैं, ठीक है। अब कर लेते हैं इसकी कमांड की बात। जो PLC से जो हमें जो कमांड आ रही थी तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अब कमांड की बात करते हैं। तो कमांड भी हमारे पास ये आ रही है TB प्लस, ठीक है। अब ये यहाँ जब हमारे पास कमांड आएगी, ठीक है, पहले तो हमने इसको एनर्जाइज़ करवाया। जो इसको पॉजिटिव नेगेटिव चाहिए था वो हमने इसके पावर को दे दिया, ठीक है। और जब पावर को दे दिया तो FBPOS प्लस ये हमारा स्पेयर पड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं तो एक और वायर की बात कर लेते हैं। तो ये वायर क्या चीज़ है इसको भी ट्रेस आउट कर लेते हैं, ठीक है। इस पर लिखा हुआ है स्टेटस। स्टेटस का मतलब है कि अगर ये हमारा ओके पोजीशन पे है तो ये ओके चल रहा होगा। अगर इसमें कोई भी एरर आएगा या फेलियर आएगा तो आगे जो है हमारी जो PLC है वो हमें एरर दे देगी और इसको बंद या ऑफ़ करवा देगी। एरर हमें मतलब कि शो करवा देगी हमारी डायनी पर, ठीक है। अब चलते हैं इससे आगे। तो आगे चलते हैं, जब हमारी PLC से जब कमांड आएगी TB+1, तो मैं आपको ये दोबारा दिखाने की कोशिश करता हूँ कि हमारी कमांड TB+1 ही है। तो चलते हैं हम पेज नंबर 38 पे दोबारा। तो ये आ गया हमारा पेज नंबर 38। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ टर्बो बाईपास, ठीक है, ये लिखा हुआ टर्बो बाईपास। अब जब यहाँ से मैं ऊपर जाता हूँ तो ये हमारे जो मॉड्यूल से जो कनेक्शन निकल रहे हैं ये उसकी डिटेलिंग थी, ठीक है। माइनस हमें डायरेक्ट मिल रहा था और डायरेक्ट मिलने के बाद ये देखिए TB+1 ये इसकी आउटपुट निकल रही है, ठीक है। और आउटपुट जाके डायरेक्ट जो है हमारे जाएगी ये डायरेक्ट जाएगी हमारे डिवाइस पे। ये आप देख सकते हैं डिवाइस TB+1। जब हमारी PLC से जब कमांड मिलेगी इसको कि यार आपको जो है 100% ओपन होना है, 35% ओपन होना है या 40% ओपन होना है, जब हमें वहाँ से कमांड मिलेगी तो ये टर्बो बाईपास जो है हमारे उतने परसेंटेज पर ओपन होगा। अब चलें खैर इससे आगे बात कर लेते हैं। तो जब आगे बात कर लेते हैं तो यहाँ से आप इसके कनेक्शन देख सकते हैं कि अब यहाँ से हम नॉर्मल बात कर लेते हैं। तो ये हमारा जो है दूसरा टर्बो चार्जर आ गया। जब दूसरा टर्बो चार्जर आ गया बिल्कुल इसी तरीके से हमने इसको माइनस दे दिया डायरेक्ट। अब इसका पॉजिटिव जो है वो इसके पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो जाएगा, जो कि हमने इससे जंप करके यहाँ उठाया, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से उठाने के बाद जो है ये जो FBPOS प्लस था तो ये हमारा स्पेयर था, जैसे कि इसमें स्पेयर है बिल्कुल इसी तरीके से इसके अंदर भी स्पेयर है। अच्छा, तो उसके बाद जो है अब आगे बात कर लेते हैं। जब आगे बात करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे कनेक्शन थोड़े से चेंज है। तो यहाँ पे क्या कर रहे थे कि हम इसको कमांड जो है फर्स्ट वाले टर्बो बाईपास में दे रहे थे, ठीक है। जो सेकंड वाला था जो ये जो हमारा माइनस है 12 नंबर का, तो ये 12 नंबर का जो कनेक्शन है ये यहाँ से हमारा जाएगा और A1 के प्लस में जाएगा, A1 के प्लस में जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा जो है जंप हो जाएगा। अब जंप होने के बाद जो है अब ये इस पे लिखा हुआ है 38.3। अब इसको भी सर्च कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है TB माइनस की, ये है क्या, ये हमें कमांड मिल रही है या हम दे रहे हैं, ये क्या हो रहा है इसके साथ। तो चलते हैं 38 के 3 पे। अच्छा, तो ये हम आ गए 38, ये आप देख सकते हैं ये हमारा पेज नंबर है 38 के 3 पे आए। तो 3 पे आए तो यहाँ पे आ गया हमारा टर्बो बाईपास। तो यहाँ से हमारी कमांड निकल रही थी TB प्लस है और TB माइनस जो है वो हमारा डायरेक्ट है। तो इसका मतलब
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مائنس ہے وہ ہمیں ڈائریکٹ مل رہا ہے، تو ہماری ایک ہی پی ایل سی کی جو آؤٹ پٹ کی جو کمانڈ ہے اسی سے ہی جو ہے ہمارے دونوں ٹربو بائی پاس جو ہیں، یہ جو دونوں ٹربو بائی پاس ہیں، یہ دونوں ٹربو بائی پاس جو ہیں ایک ہی ساتھ ہی کنٹرول ہو رہے ہیں۔ مطلب کہ مثال کے طور پہ کہ اگر 20% یہ کھل رہا ہے تو 20% یہ بھی کھلے گا، اگر یہ 50% ہے تو یہ بھی ہمارا 50% ہی کھلے گا۔ تو خیر یہ ویڈیو کچھ زیادہ بڑی ہو گئی ہے، تو میں تو خیر وہ اس کی سیکنڈ جو آپشن تھا مطلب تھرڈ والا، وہ تو میں خیر اس ویڈیو میں کور نہیں کر سکا۔ جو نیکسٹ ویڈیو آئے گی تو اس میں جو ہے میں اس کو کور کرنے کی کوشش کروں گا، تاکہ یہ ہمارا جو اینالوگ آؤٹ پٹ کا جو ماڈیول ہے تو یہ ہمارا کمپلیٹ ہو سکے۔ تو فی الحال جو آج کی ویڈیو تھی وہ ہماری یہیں تک ہی تھی، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔